اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے بالخصوص مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں، ایمان والوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ویڈیو کا سلسلہ ریگولر میں اپلوڈ کرتے جا رہا ہوں اپنے چینل پر۔ اب آج کے ویڈیو کا بھی بہت اہم رول ہے ہم سب کی زندگی میں۔ جب ہم لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا بنا کسی اپلیکیشن کے، تو کم سے کم ویسے بھی ہم لوگ بہت خوش نصیب امتی ہیں الحمدللہ۔ اب اتنے خوش نصیبی کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت ہوگا تو وہ جانے اور اس کی تقدیر جانے۔ آج کے ویڈیو کا عنوان ہی ہے، ٹاپک ہی ہے تقدیر۔ آج کے ویڈیو کا عنوان، ٹاپک اور ٹائٹل ہی ہے، اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے تقدیر۔ دائنے ہاتھ پہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے اللہ کے نام کا لوگو ہے، اللہ کے نام کا لوگو ہے اوپر دائنے ہاتھ پر، اور اللہ کے نام کے لوگوں کے نیچے قرآن مجید کا فوٹو ہے۔ ابھی رمضان الحمدللہ اب شروع ہونے والا ہے، بہترین رمضان کا اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نام کا لوگو اوپر ہے، اس کے نیچے قرآن مجید القرآن کریم کا فوٹو ہے، اور اوپر میں نے لکھ دیا تقدیر، بلو کلر سے اوپر لکھ دیا اردو میں تقدیر، آگے سوالیہ نشان، تقدیر کیا ہے، اور اس کے نیچے ریڈ کلر سے ہندی میں لکھ دیا تقدیر، آگے پرشن واچک چنہ، کوشچن مارک۔ تقدیر جسے ہم لوگ کہتے ہیں تقدیر کہہ لیں یا مقدر کہہ لیں، یا انگریزی میں ڈیسٹنی کہلاتا ہے، انگریزی میں ڈیسٹنی کہتے ہیں اور ہندی میں بھاگیہ کہتے ہیں۔ ایک اور ٹپکل ہندی ہے نیتی کہتے ہیں، تو ہندی میں کہتے ہیں بھاگیہ، دوسرا ٹپکل ہندی نیتی، انگلش میں کہتے ہیں ڈیسٹنی، اور ہم لوگ اردو اور عربی میں کہہ دیں تقدیر، مقدر۔ تو ہم سب انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں الحمدللہ، بہت اونچی ہماری فضیلت ہے۔ اللہ نے قریب 16,500 مخلوق بنائے ہیں، ان میں فرشتے اور جنات اور سب سے افضل ہم ہیں۔ کب؟ جب ہم سچے پکے ایمان والے ہوں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں اگر زندگی گزارتے ہیں، اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے تقدیر، تقدیر، مقدر۔ تو ہر مرد عورت یہ سوچتا ہے کہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے تقدیر والے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے تقدیر والے ہیں۔ اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے تقدیر کو کوستے ہیں۔ کچھ لوگ مرد عورت اپنے تقدیر کو سب سے اچھا مقدر مان کے سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی تقدیر کو بارہا مرد عورت کوستے ہیں کہ میں تو بڑا بد نصیب ہوں، بڑا ایسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا میرے ذہن میں 2 بہترین حدیث ہے۔ ایک تو ابھی کتاب دیکھ کے میں پڑھتا ہوں، اور ایک کا مفہوم بیان کروں گا۔ اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے کلمہ ہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کے لیے تو فرض عین ہے، فرض ہے کچھ باتوں پہ بنا دیکھے ہوئے یقین لانا، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے۔ جیسے اللہ پر یقین، ان کے دین اسلام پر یقین، آسمان کی ساری کتابیں آسمان سے اتری ہوئی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان پر یقین، سارے نبیوں پہ یقین، فرشتوں پہ یقین،
जन्नत और जहन्नम पे यकीन, रोज़े आखिरत पे यकीन, और उसके साथ साथ अपनी अच्छी या बुरी तकदीर पर यकीन। यकीनन ये बात सच है कि दोनों तरह की तकदीर होती है, अच्छी भी तकदीर होती है, बुरी भी तकदीर होती है। व खैरहू व शर्रहू का मामला है, खैर वाली भी तकदीर होती है, बुरी वाली भी तकदीर होती है। उस पर ईमान लाना हम सब मुसलमानों के लिए फ़र्ज है। लिहाजा मैं पहली हदीस पढ़ता हूँ, आप हज़रात गौर से सुने। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं पढ़ता हूँ किताब देख के। एक फ़र्ज के बारे में, तकदीर पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आदमी का नाकारा और नाकाबिल होना और काबिल व होशियार होना भी तकदीर ही से है। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6751, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। फिर से एक बार सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आदमी का नाकारा और नाकाबिल होना और काबिल व होशियार होना भी तकदीर ही से है। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6751, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। इसकी तफसील में लिखते हैं, तकदीर कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, वह सब अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मशीयत से है, जिसको अल्लाह ताला पहले ही तय कर चुका है। हमारे ऊपर उसका यकीन रखना और इस पर ईमान लाना फ़र्ज है। हाँ, अच्छी तकदीर हो या बुरी तकदीर। आपने सुना भी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और इस हदीस के तफसील में आया है कि फ़ायदा तकदीर कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, वह सब के सब अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मशीयत से है, मसलहत से है, जिसको अल्लाह ताला पहले ही से तय कर चुका है। हमारे ऊपर उसका यकीन रखना और उस पर ईमान लाना फ़र्ज है। इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी में, एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड, एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। यकीनन हमारे ईमान में यही बात है, एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड, पहले से सब कुछ डिसाइडेड है। हत्ता कि जन्नत और जहन्नम भी डिसाइडेड है, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम भी डिसाइडेड है। देखो, अल्लाह ने, जब हम और आप रूह अरवाह की शक्ल में थे, रूह की शक्ल में थे जमाने अरवाह में, तो अल्लाह ने पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम। जिन रूहों ने वहाँ पे लब्बैक कहा है वही जन्नती रूहें हैं, और जो वहाँ साइलेंट रह गई वही जहन्नमी रूहें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये हमारे जो नॉन मुस्लिम काफिर, यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, और अगर इसी कुफ्र पे मर गए तो यही साइलेंट रूहें थी जिन्होंने लब्बैक नहीं कहा था। बात बहुत लंबी हो जाएगी। एक तकदीर के मुतालिक आपने हदीस सुना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सब कुछ जो दुनिया में अच्छा या बुरा हो रहा है हमारे आपके साथ, किसी भी मर्द, औरत, भाई, बहन, बेटा, बेटी के साथ, वो सब प्री डिसाइडेड है, ये तकदीर से ही होता है। अब वो अलग बात है कि ग्राफ नीचे ऊपर चढ़ता है, कभी अच्छी बात, कभी बुरी बात। अब दूसरी एक हदीस मुझे याद आ रही है, जिसको मैं कई बार अपने लाइव स्ट्रीमिंग में कह चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल करम से 4 चीज़ें अता कर दी हों, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा वो मर्द औरत खुशनसीब हैं इस दुनिया में, जिसको अल्लाह ने 4 चीज़ें अता की हो। नंबर 1, क़नाअत करने वाला दिल, क़नाअत करने वाला दिल, जितना मिला है उसी पे शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2, घर की इज्जत आबरू संभालने वाली बीवी या बीवियां। और नंबर 3, हर हाल में शुक्र करने वाली ज़बान।
तकलीफ़ हो, गम हो, खुशी हो, बीमारी हो, तंदुरुस्ती हो, गरीबी हो, अमीर हो, हर हाल में शुक्र करने वाली ज़बान। और नंबर 4, मशक्क़त झेलने वाली बदन, अपने बदन से थोड़ी सी मशक्क़त झेलने वाले। फिर सुनिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है, जिसको अल्लाह ने 4 चीज़ें अता की हो वह दुनिया में खुशनसीब मर्द औरत है। नंबर 1, क़नात करने वाला दिल, जितना अल्लाह ने नियामतें दी हैं उसमें शुक्र करे, वो शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2, हर हाल में शुक्र करने वाली ज़बान, चाहे दुख हो या सुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, तंदुरुस्ती हो, बीमारी हो, हर हाल में शुक्र करने वाली ज़बान। और नंबर 3, घर की आबरू इज्जत संभालने वाली बीवी या बीवियां, लेकिन इसको दोनों तरफ ले ले, जीवन साथी, एक औरत के लिए उसका शौहर और एक मर्द के लिए उसकी बीवी या बीवियां। और चौथा, मशक्क़त झेलने वाली, मुजाहिदा करने वाली, तकलीफ़ उठाने वाली बदन। ये 4 चीज़ें जिसको मिल गई वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक वो खुश नसीब है। हर मर्द औरत, भाई बहन, बेटा बेटी अपने आप को इस हदीस के आईने में देख ले कि क्या वाकई चारों चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो हम खुश नसीब हैं, अच्छे तकदीर वाले हैं। भले हम गरीब हों, नो प्रॉब्लम, अमीरी, आज का ज़माना जो चल रहा है, हर आदमी चाहता है बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, सोना चांदी हो, बैंक बैलेंस हो, हर आदमी, ये मयार नहीं है दीन इस्लाम का। फिर से सुने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से अगर ये 4 चीज़ें जिस मर्द औरत को इनायत कर दिया हो, दे दिया हो, वो खुश नसीब है इस दुनिया में। नंबर 1, क़नात करने वाला दिल। नंबर 2, हर हाल में शुक्र करने वाली ज़बान। नंबर 3, घर की इज्जत आबरू संभालने वाली बीवी या बीवियां या मर्द औरत के आपस में जीवन साथी, मर्दों के लिए औरतें, औरतों के लिए उनके शौहर। और नंबर 4, मुजाहिदा करने वाला, मशक्क़त करने वाला, मुजाहिदा करने वाला बदन, हेल्थ, यानी हेल्थ कहते हैं ना, तंदुरुस्ती लाख नियामत है, तो तंदुरुस्ती लाख नहीं करोड़ गुना बड़ी नियामत है। तो एक हदीस अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर के बारे में वो हो गई, और दूसरी ये हदीस की जिसको अल्लाह ने 4 चीज़ें अता कर दी वो खुशनसीब है। और हम सबको बार बार हमने कलमा पढ़ा है जिस कलमे के मुताबिक भी है, और कुरान में कई जगह अल्लाह ने मुतअद्दिद जगहों पे कहा है कि अल्लाह के ऊपर यकीन, आसमान की 4 बड़ी किताबों पर यकीन, आसमानी किताबों पर यकीन, अल्लाह पे यकीन, दीन इस्लाम पर यकीन, सारे नबियों पे यकीन, फरिश्तों पे यकीन, अच्छी और बुरी तकदीर पर यकीन, जन्नत जहन्नम पर यकीन, रोज़ हश्र पर यकीन, सब पर ईमान और यकीन लाना ही ईमान कहलाता है। इस्लाम का ये अटूट अंग है। लिहाजा आज के वीडियो का जो टाइटल है तकदीर, मुक़द्दर, तो ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। ये 2 हदीसें यहाँ हो गई, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। अब तीसरी बात जो मिलाई जाए वो इस तरह से तजर्बा, मैं अपनी तरफ से मिला रहा हूँ कि तजर्बा, हम सब हिंदुस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें, ये आज मुकेश अंबानी साहब जो रिलायंस के डायरेक्टर हैं और मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी, बाकायदे सारे लोग जानते हैं कि वो कुछ रुपयों की नौकरी करते थे, पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे। हाँ, और मैं तो न्यू मुंबई में अल्हम्दुलिल्लाह उनका पड़ोसी हूँ। दूसरे नंबर पे आज हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं मिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, पूरा नाम है नरेंद्र अभी चलिए पूरा नाम नरेंद्र मोदी जी, चलिए इस वक्त पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, और बीजेपी के अकॉर्डिंग तो पूरी दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं। ये क्या थे? एक मामूली गरीब इंसान। नरेंद्र मोदी जी खुद कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इनकी माँ दूसरे के घरों पे चूल्हा बर्तन और पानी का यानी मजदूरी करती थी,
नरेंद्र मोदी जी खुद एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं इस बात को कि ये रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में चाय बेचे हैं। और उसके बाद बहुतेरे लोगों का नाम लिया जा सकता है। सहारा के सुब्रतो राय जी थे, गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह बेचा था। APJ अब्दुल कलाम साहब जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी बने, मिसाइल मैन भी कहलाते हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब, पूरा फुल फॉर्म होता है अबू फ़कीरा अब्दुल कलाम साहब। तो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो इंतकाल कर गए, वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी रहे और इंडिया का उनको सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, यहाँ के हिंदुस्तान के वो राष्ट्रपति भी रहे और वो मिसाइल मैन भी रहे, साइंटिस्ट भी रहे, और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, वो भारत रत्न का अवार्ड भी मिला हुआ था उनको। और वो कितने गरीब थे, बहुत गरीब थे। उनकी पढ़ाई के लिए उनकी बहन ने जेवर वगैरह सब बेच दिया था। लिहाजा तकदीर बड़ी चीज़ होती है हमारे आपके ज़िंदगी में। जो हम सोचते हैं या करना चाहते हैं, हमारा आपका मुक़द्दर और तकदीर 10 गुना आगे आगे चलता है। इस पे हम सब मुसलमानों का ईमान है। लिहाजा वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को और मुझे भी कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाइए, और अच्छी और बुरी तकदीर दोनों पे सब्र और शुक्र करके इस दुनिया की थोड़े दिन की ज़िंदगी गुजारने वाला बनाइए। मरने के बाद हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।